हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर ग्रेड कैट बाय टॉप रैंकर्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन मोर टॉपिक ज्योमेट्री का, विच इज पॉलीगन्स। है ना, पॉलीगन्स थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं अगर सही से इंफॉर्मेशन मालूम ना हो। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, do not forget to check the other academic videos based on all the topics: algebra, geometry, numbers, and some questions on it. Questions are from basic level to advanced level. So those could be very helpful to you if you are preparing for CAT this year. Now, let's start with polygons. So polygons में हम denote करते हैं end sides. ठीक है, those end sides could be triangle or quadrilateral. Triangle with three sides, quadrilateral four sides, pentagon five sides, hexagon six sides, heptagon, it will be seven sides. Okay. Octagon is eight sides. And then comes nonagon, decagon. So number of sides वहां से वेरी करते हैं। अगर हम बात करें पॉलीगन्स की, दो डिफरेंट काइंड के पॉलीगन्स हमें देखने को मिलते हैं। वन ऑफ देम इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, एंड अदर इज concave polygon. So in case of concave polygon, what do we say? Which type of polygons do we say concave polygon? किसी भी पॉलीगन जिसका कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे कि अगर हम बात करें इस पॉलीगन की, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, so this will be known as concave polygon. In case of convex polygon, all the polygons where all the interior angles are less than 180 degree, उसे हम convex polygon बोलेंगे। So CAT के syllabus में we talk polygon as convex polygon. All right. Now, if we talk about what could be the number of sides, so we have seen triangles three sides, quadrilateral four sides, pentagon five sides, hexagon six sides, heptagon seven sides, octagon eight sides, nonagon 10 sides, decagon 11 sides, right? So उसी प्रोसेस में आगे हम दो डेकागन 12 साइड्स हो गए। सो अगर हम बात करें पॉलीगन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है? सो वन थिंग दैट वी नो, दैट इन एनी ट्रायंगल there are three angles, theta, alpha, and beta. So what we can say, theta plus alpha plus beta will be equal to 180 डिग्री, है ना? वैसे ही अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इसे हम दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। So sum of all the interior angles in case of quadrilateral or in case of four sides will be 180 into 2. In case of pentagon, we can divide this into three triangles, 1, 2, 3. So sum of all the angles, all the interior angles will be 3 into 180 degree. And similarly, if there are n sides, then sum of all the interior angles will be 180 into n minus 2. ठीक है। बात करते हैं पॉलीगन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, all the interior angles, this will be equal to n minus 2 into 180 degree. ये हो गया sum of all the interior angles. Second, sum of all the exterior angle. तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कांस्टेंट होता है और वो होता है 360 डिग्री। Then comes third part, which is number of diagonals. Okay, number of diagonals in a polygon. This will be equal to n into n minus 3 upon 2, where n is the number of sides. है ना? यहाँ पे जहां भी मैं n लिख रहा हूं, n is nothing but number of sides. तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है पॉलीगन से रिलेटेड। ओके, ना अगर हम बात करें रेगुलर पॉलीगन की,
So what type of polygons are a regular polygon? So a polygon which has all sides of equal length and all angles of equal measurement, then only it will be a regular polygon. सारे साइड लेंथ इक्वल होने चाहिए और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगन होगा. अगर सारे साइड्स इक्वल हुए बट सारे एंगल्स इक्वल नहीं हुए तो पॉलीगन नहीं होगा. जैसे रेक्टेंगल, जैसे रोम्बस. रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है बट सारे एंगल इक्वल नहीं होते. सो दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन. ठीक है. और अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, सो रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन. चार से बड़े साइड्स में कैसे हमें ये देखने को मिल सकता है, तो जैसे ये एक रेगुलर पेंटागन है. ठीक है. तो यहाँ पे रेगुलर पेंटागन है, सारे साइड लेंथ इक्वल है ना. अगर इसी में से किसी एक को मैं एक्सटेंड कर दूं इस साइड्स को और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं इस पे, तो जो एंगल्स हैं जो पहले इक्वल थे सारे के सारे, वो ये दोनों अभी भी इक्वल हो जाएंगे, है ना. पैरेलल दो लाइंस अगर पैरेलल हो, राइट, दो ट्रांसवर्स लाइन है तो ये दोनों इक्वल होते हैं ये एंगल्स, राइट. ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये थीटा, ये अल्फा, तो ये अल्फा. सो इन दिस केस यू कैन सी कि ये पॉसिबल है कि सारे एंगल्स इक्वल हो बट सारे साइड्स इक्वल ना हो, सारे साइड्स इक्वल हो बट सारे एंगल्स इक्वल ना हो. बट जब दोनों चीजें होंगी तो ये हम बोलेंगे कि वो एक रेगुलर पॉलीगन है. नाउ थोड़ा सा रेगुलर पॉलीगन के बारे में समझते हैं. तो रेगुलर पॉलीगन्स, now we already know that sum of all the interior angles of a polygon is 180 degree into 1 n minus 2. So what we can see that interior angle each interior angle of any regular polygon will be equal to sum of all the angles divided by n, है ना. तो लेट्स से कि अगर n पेंटागन है, n इज इक्वल टू 5, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 into 3 upon 5. So 540 upon 5 which is equal to 108 degree. अगर ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, तो ईच इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 into 6 upon 180 into 4 upon 6, 720 by 6 which is equal to 120 degree. और ऐसे ही बाकी सारे इंटीरियर एंगल्स भी निकाले जा सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n. सेकेंड केस, ईच एक्सटीरियर एंगल. सो अगर हम इंटीरियर एंगल को आई ए से डिनोट करते हैं, लेट्स से दिस इज एक्सटीरियर एंगल ई ए, तो दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, है ना. ये होगा ईच एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज अभी हमने देखा था किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन में सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, और चूंकि सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, तो ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री प्लस n. इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. किसी भी रेगुलर पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. तो कभी भी नंबर ऑफ साइड्स अगर गिवन है और ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो इस फॉर्मूले की जगह हम ये निकाल सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, है ना, कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा और 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल विल गिव अस इंटीरियर एंगल, तो वहां से भी फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट रेगुलर पॉलीगन्स. नाउ आगे हम बात करेंगे एरिया और डिफरेंट थिंग्स, बट उससे पहले बात करते हैं एक क्वेश्चन की, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की. क्या कहता है ये, अ रेगुलर पॉलीगन विद n sides has integral interior angles and each exterior angle measuring at least 45 degree and at most 90 degree. How many values n can take? So what we can say, each exterior angle is 360 degree upon n
this should be greater than equal to 45 degree and less than equal to 90 degree. और अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/90 will be less than equal to n/360 which is less than equal to 45, 1/45. अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 360 से तो ये कितना आ जाएगा 4n and this will be equal to 8. So n हमें मिल गया, क्या मिल गया, n is equal to 4 to 8, any value 4, 5, 6, 7, 8. But यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, it says it has integral interior angles और हमें पता है each interior angle plus each exterior angle is equal to 180 degree. So if each interior angle is integer, अगर ये इंटीजर है क्या हम कह सकते हैं कि एवरी एक्सटीरियर एंगल विल आल्सो बी इंटीजर, है ना, हर एक्सटीरियर एंगल इंटीजर होगा. अब यहां पे अगर हम देखें तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एन. सो एन जो है वो 360 का फैक्टर होना चाहिए, तभी तो ये इंटीजर होगा, है ना. नाउ इन केस ऑफ all the values of n that we got 4, 5, 6, 7, 8, 7 is not a factor of 360. So n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है. So how many values n can take? 4 values. 4n is possible. तो ये हो गया आंसर. ऑलराइट. सो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन पे. नाउ सेकंड क्वेश्चन अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है. आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू कि आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन चेक द सॉल्यूशन. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. A square is placed on a regular pentagon as shown in the figure. Find angle x. तो हमें एंगल x फाइंड करना है. ये एक रेगुलर पेंटागन है. सो रेगुलर n इज इक्वल टू 5 के लिए जो इंटीरियर एंगल होता है अभी हमने देखा था वो कितना होता है, वो होगा 108 डिग्रीज. तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल हो गया 108, जिसमें से ये एंगल 90 डिग्री है. तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 18 डिग्री हो जाएगा, टोटल 108 डिग्री है. अब देखो चूंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है और ये एक स्क्वायर है, सो साइड लेंथ इक्वल होंगे. ये स्क्वायर है तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, एंड रेगुलर पेंटागन है तो दिस लेंथ विल आल्सो बी इक्वल टू दिस लेंथ. इन दैट केस इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. तो हम क्या कह सकते हैं 2 थीटा प्लस 18 is equal to 180, और वी कैन से थीटा विल बी इक्वल टू 81 डिग्री. थीटा हो गया 81 डिग्री. अब फिर से वापस आते हैं इस पूरे एंगल पे. ये पूरा एंगल कितना होगा 108 डिग्री, है ना. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 माइनस 81 विच इज इक्वल टू 19 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 27 डिग्री. दिस इज द वैल्यू ऑफ x, है ना. कितने लोगों का करेक्ट आंसर आया था इस क्वेश्चन में, मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का कितने लोगों का करेक्ट आंसर आया था. नाउ अब बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की. कैट हो या ओमेट हो, रेगुलर हेक्सागन बहुत पॉपुलर है. किसी भी और पॉलीगन से ज्यादा रेगुलर हेक्सागन से क्वेश्चन आए. चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हम कह सकते हैं रेगुलर हेक्सागन के बारे में. ऑल साइड लेंथ्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, ईच इंटीरियर एंगल हमने फाइंड किया था दिस विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री. ये सारे के सारे 120 डिग्रीज होंगे. नाउ अगर मैं ड्रॉ करूं कि इसमें जो डायगोनल्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो दो डिफरेंट काइंड ऑफ डायगोनल्स होंगे. एक इस लेंथ के और एक ये लेंथ होगा, दो बड़े. लेट्स से कि दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ. ठीक है, तो ए सी विल बी द स्मॉलर डायगोनल, है ना. ए सी विल बी स्मॉलर डायगोनल, ए डी
will be the larger diagonal. Number of diagonals कितने होंगे? So number of diagonals will be equal to 6 into n minus 3 by 2, which is equal to 9. 9 different kind of diagonals होंगे जो ड्रॉ किए जा सकते हैं इसमें, बट जो उनकी लेंथ होगी वो या तो AC के बराबर होगी या AD के बराबर होगी। 3 डायगोनल्स होंगे जिनकी लेंथ AD के बराबर होगी, 6 डायगोनल्स होंगे जिनकी लेंथ AC के बराबर होगी। ऑलराइट, तो AC की लेंथ हम क्या निकाल सकते हैं? तो देखो ये 120 डिग्री है, AB इज इक्वल टू BC, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। So in case of 30, 30 and 120 डिग्री ट्राइंगल, ये जरूर याद रखेंगे कि जो साइड्स का रेशियो होता है वो 1:1:√3 होता है। तो ये साइड लेंथ अगर A है, AB is A, BC is A, so AC will be equal to A√3। ठीक है, अब देखो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ACD वो 90 डिग्री हो जाएगा। पूरा एंगल BCD वाज 120 डिग्री, जिसमें से BCA 30 डिग्री है, तो एंगल ACD 90 डिग्री हो जाएगा। So in that case we can find the length of AD। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये लेंथ A है, ये लेंथ A√3 है। We can say AD will be equal to square root of A√3 square plus A square, which is equal to 3A square plus A square, which is equal to 4A square। तो अल्टीमेटली AD की लेंथ कितनी आ गई? ये आ गया 2A। ठीक है, मतलब जस्ट डबल, सीधा डबल होगा, है ना। और इसी रेगुलर हेक्सागन के अगर हम जो बड़ा वाला डायगोनल है उसे हम मिड पॉइंट को अगर लें और भी डायगोनल्स ड्रॉ कर दें लाइक दिस, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ये होगा सेंटर ऑफ द हेक्सागन, और इसी को यूज करके हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल, सर्कल सर्कल और इन सर्कल। देखो इसे अगर हमने, ये डायगोनल है, इसकी लेंथ 2 है, तो ये भी है, ये भी है, तो रेडियस A लेके हम सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ऑल वर्टेक्स से जाएगा। तो वी कैन से इन रेगुलर हेक्सागन सर्कम सर्कल R विल बी इक्वल टू A, और जो इन सर्कल है उसकी लेंथ कितनी होगी? तो देखो इन सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो इंस्क्राइब है इस हेक्सागन में, है ना, ऐसा कुछ ऑल साइड्स को टच कर रहा है, तो ये क्या होगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे इसकी रेडियस R मिलेगी। अब ये जो ट्रायंगल है, अगर ये O है तो OED एक कैसा ट्रायंगल होगा? सोच के देखो। तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया 360 डिग्री को। ये एंगल 60 डिग्री होगा, और ये दोनों साइड दोनों के दोनों रेडियस का काम करेंगे R एंड R, तो दोनों इक्वल होंगे, तो बचे हुए एंगल्स भी 60 डिग्री एंड 60 डिग्री हो जाएंगे। तो बेसिकली ट्रायंगल OED एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन को हम 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो R है, R क्या हो जाएगा? R विल बी द हाइट ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड लेंथ क्या है? A है, which will be equal to √3/2A। तो ये हो गया इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। ठीक है, अच्छा इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, so we can say area of regular hexagon of a regular hexagon will be equal to, so we can divide this into 6 equilateral triangle, right? 6 equilateral triangle में अगर हम इसे डिवाइड करें तो 6, और हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? √3/4A²। ये साइड लेंथ अगर A है तो, है ना, तो यहां से हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें देखने को मिलती है हेक्सागन में, एंड जितने भी एरिया बेस्ड क्वेश्चन आए हैं कैट में वो इस कॉन्सेप्ट पे आए, तो ध्यान से समझेंगे। इफ वी ज्वाइन द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ, और फिर साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, 1 सेकेंड,
तो हमें एक बहुत ही अमेजिंग फिगर देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो लाइक दिस, फिर यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, फिर इसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और जो बचे हुए हैं उस साइड्स के भी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो लाइक दिस, ऐसा कुछ थोड़ा सा ये। अब हमें क्या दिख रहा है? नाउ यू कैन सी दैट we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, we have 24 triangles। और बहुत ही अमेजिंग बात यह है कि ये सारे ट्रायंगल इक्विलैटरल होंगे और इन सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, सारे triangles. So a regular hexagon can be divided into 24 equilateral triangles. Okay. Each equilateral triangle की जो साइड लेंथ होगी, ये पूरा का पूरा अगर a है तो ये a/2 हो जाएगा यहां से यहां तक, है ना। तो जितने भी हेक्सागन से रिलेटेड एरियाज के क्वेश्चन आए हैं कि हेक्सागन के किसी पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो वो इससे रिलेटेड यहाँ पे काफी हेल्प मिल जाती है। जैसे देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो कि ये जो रीजन है, इस रीजन का एरिया, इस रीजन का एरिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू होल हेक्सागन एरिया कितना होगा, तो क्या करना है? अगर नॉर्मल वे में इसे सॉल्व करें तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, है ना, ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और इसे इक्वेट करना पड़ेगा टोटल एरिया से, तो जो रेशियो मिलेगा दैट विल बी आवर आंसर। बट यहाँ पे बहुत ही इजीली आप देख सकते हो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू वी हैव? 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स, एंड ओवरऑल कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे? 24। सो जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 5/24। सो किसी भी टाइप का अगर दिया हो रीजन, कोई रीजन दिया हो हेक्सागन के अंदर और उसका एरिया निकालना हो, तो वहां पे हम ये 24 इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, let A B C D E F be a regular hexagon, what is the ratio of the area of triangle ACE to that of ABCDEF? so ACE, A से C को ज्वाइन कर दिया, C से E को ज्वाइन कर दिया और AE को ज्वाइन कर दिया, तो ये सारी लेंथ क्या है? ये कुछ नहीं, जो शॉर्टर डायगोनल है हेक्सागन का वही है। और हमें पता है कि अगर ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ √3 होगी, ये भी √3 होगा और ये भी √3 होगा। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE divided by area of hexagon ABCDEF, this will be equal to √3/4 a square, which is √3 square divided by 6 into √3/4 into 1 square, साइड लेंथ 1 है। यहां से हम क्या कह सकते हैं? √3/4 √3/4 कैंसिल आउट, ये 9 हो जाए, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो रेशियो आ गया 1:2। दैट इज योर आंसर। पर अगेन ये बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो अगर फिर से हमने वो 24 इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं जो रिक्वायर्ड एरिया है। वो देखो कैसे, तो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार वो भी चेक कर लेंगे कि हम कैसे ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई है, ये वाली लाइन यहाँ जाएगी, ठीक है, और फिर मिला देते हैं इन लाइंस को, ऐसा कुछ। अब हमें मिल गया 24 इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमें किसका एरिया चाहिए वो देखो, हमें जो एरिया चाहिए वो चाहिए ACE का, है ना। तो आप देख सकते हो कि कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल इसके अंदर आ रहे हैं। कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाफ पोर्शन आ रहा है, लाइक ये हाफ आ गया, ये हाफ आ गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा 1
हाँ, ये भी हाफ ही है एक्चुअली, हाफ। हाफ ये वन वन वन, हाफ हाफ हाफ, ये भी आपका हाफ ही आएगा, ये लाइन यहां से जानी चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी हाफ, वन 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 एंड हाफ। देन अगेन दिस इज हाफ हाफ हाफ। ठीक है, तो अगेन थोड़ी सी ड्राइंग बेटर हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइन विल गो थ्रू दीज पॉइंट्स, यहां से जाएगी। ठीक है, तो कितने मिल रहे हैं हमें? 6 तो यहाँ दिख रहे हैं और 12 हाफ है, तो टोटल 6 वहां पे। सो टोटल एरिया 12, 12 ट्राइंगल इसके अंदर आ रहे हैं, डिवाइड बाय 24, दिस इज इक्वल टू 1/2। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, है ना? चलो एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 4, in the figure below, ABCDEF is a regular hexagon and triangle AOF is 90 degree. FO is parallel to ED. FO is parallel to ED. FO ED के पैरेलल है, ये जो ED है ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी रूल से ये भी पैरेलल ही होगा। Find the ratio of area of the triangle AOF to that of hexagon ABCDEF. तो देखो, एक तो तरीका ये है कि हम इसकी लेंथ निकाल लें, AO की लेंथ। ए की लेंथ होती है √3, तो ये हो जाएगा √3/2, है ना? ये लेंथ 1 है, अगर 1 है तो ये √3/2, और यहां से हम FO की लेंथ निकाल सकते हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना? कितनी आ जाएगी FO की लेंथ? सो 1 - 3/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 हो गया तो ये 1/2 हो गया बेसिकली, दिस इज 1/2। ये लेंथ 1/2 हो गई, तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOF विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, √3/2 इंटू 1/2, है ना? विच विल बी इक्वल टू √3/8। पूरे हेक्सागन का एरिया क्या होगा? सो एरिया ऑफ हेक्सागन विल बी इक्वल टू 6 इंटू √3/4 इंटू 1²। अब देखो इन दोनों का रेशियो क्या होगा। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3/8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू √3, और 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया और ये 3 टाइम्स हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, 6 इंटू √3/4 A²। सो इन दैट केस अगर हम देखें जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये √3/4, दिस शुड बी बिलो हेयर, राइट? थोड़ा सा यहाँ पे एक बार हम चेक करते हैं फिर से। इसका जो एरिया है √3/8, √3/2, 1/2, यस दैट इज करेक्ट। 6 इंटू 3/4, ये भी सही है। सो जो रेशियो हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOF टू दैट ऑफ हेक्सागन, सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेशियो √3/8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू √3/4। ठीक है, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 8 से हो गया कैंसिल्ड आउट, और ये 6 चला जाएगा यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई √3/√3 कैंसिल आउट, दिस विल बी इक्वल टू 1/12, राइट? नॉट 1/3, दिस विल बी 1/12। बट अगेन देख सकते हो आप कितनी कैलकुलेशन की इशू हो सकती है यहाँ पे। वही चीज अगर मैं यहाँ फाइंड करना चाहूँ तो ये देखो क्या फाइंड करना है हमें, ये रीजन, दिस रीजन क्या दिख रहा है? हाफ ट्राइंगल, हाफ ट्राइंगल, 1 फुल ट्राइंगल। सो 1 + 1 2 आ गया, टोटल 24 है, सो 2/24 विच इज इक्वल टू 1/2। सारे स्टूडेंट्स अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, आप करेक्ट आंसर लाके निकल गए अगले क्वेश्चन पे, है ना? अमेजिंग कॉन्सेप्ट ये हेक्सागन पे, राइट? चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन कैट प्रीवियस ईयर में आया था। इफ T इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AT? सो CD का मिड पॉइंट T है, हमें चाहिए AT की लेंथ, ये लेंथ चाहिए। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगेन AC को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये एंगल हमने देखा था 90 डिग्री है। अगर AB 2 सेंटीमीटर है तो ये छोटा डायगोनल जो होगा उसकी लेंथ 2√3 होगी। ये पूरी की पूरी लेंथ
2 है तो आधी लेंथ 1 हो जाएगी। इससे 80 की लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो 80 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो 12 प्लस 1 13। सो 80 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया है ना। बहुत ही इजी मार्क्स, 3 मार्क्स आपके बहुत ही इजीली यहाँ पे आ गए है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a square ABCD whose each side is 2 meter has its corners cut away so as to form a regular hexagon. Then what will be the length of each side of the octagon in meters? So एक स्क्वायर ड्रॉ करना है हमें जिसकी हर साइड क्या है 2 सेंटीमीटर। कॉर्नर्स को ऐसे कट किया गया है, ऐसे कट किया गया है ना, जिससे कि हमें क्या मिल रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन मिल रहा है। अब आप देख सकते हो रेगुलर हेक्सागन कौन सा होगा, ये रेगुलर ऑक्टागन नॉट हेक्सागन, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस, ये एक रेगुलर ऑक्टागन मिल गया। जो भी साइड लेंथ होगी सबकी सेम होगी है ना। तो रेगुलर ऑक्टागन के बारे में हमें क्या कह सकते हैं कि व्हाट विल बी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360/8 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री हियर, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180। सो अगर ये एंगल 135 है तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा हर जगह। If this length is x, this will also be x. Similarly, if this is x, this will also be x. तो ये जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x। सो 2 माइनस 2x और ये लेंथ x√2 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि 2 माइनस 2x विल बी इक्वल टू x√2। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि x इंटू 2 प्लस √2 will be equal to 2, इसे राइट साइड ले जाओ। From there we can say x will be equal to 2 upon 2 plus √2, और इससे हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट, 2 माइनस √2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x आ गया, हमें क्या चाहिए 2 माइनस 2x चाहिए या x√2 चाहिए। तो जो साइड लेंथ है, जो साइड लेंथ हमें चाहिए वो x√2 होगा विच इज इक्वल टू √2 ऑफ 2 माइनस √2 है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर, द करेक्ट साइड लेंथ ऑफ अ रेगुलर octagon which has been carved away from a square as per the given instructions। ठीक है, so with this we are done with the session on polygons। ओके, मैं आगे भी ज्योमेट्री के बचे हुए टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। ओके, और हम डिस्कस करते रहेंगे उसमें बेहतरीन क्वेश्चन, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ रह जाता है यू कैन टेल अस इन द कमेंट्स। ओके, सो लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।